alaikum. Today's topic is George Orwell's essay, The Prevention of Literature. The overview. The Prevention of Literature, Orwell's explores the relationship between totalitarianism and intellectual freedom, focusing on the suppression of literature and the arts. He argues that totalitarian regimes inherently oppose intellectual freedom because they rely on the manipulation of the truth and the suppression of dissent. The key arguments Orwell makes: the first is the threat to intellectual freedom. Totalitarian regimes seek to control not only actions but also thoughts, making intellectual freedom their greatest enemy. Literature as a form of the free expression is particularly threatening to authoritarian systems. Second, the role of the writer. Writers have a unique responsibility to seek and express the truth. In a free society, writers can challenge authority, question norms, and explore controversial ideas. Under totalitarianism, writers are either silenced or forced to produce propaganda. Third, the corruption of language and the truth. Totalitarian regimes manipulate language to control thought and suppress dissent. Orwell draws parallels between the corruption of language in politics and the English language, and the suppression of literature in totalitarian states. The fourth, the impact of technology. Orwell acknowledged that technological advancements such as printing and broadcasting have the potential to spread ideas widely. However, these technologies can also be used to control and manipulate information, as seen in totalitarian regimes. The fifth, the importance of intellectual freedom. Intellectual freedom is essential for the creation of meaningful literature and the preservation of truth. Orwell warns that without intellectual freedom, society risks descending into ignorance and oppression. The key quotes in this essay are: "The imagination, like certain wild animals, will not breed in captivity. To write in plain, vigorous language, one has to think fearlessly, and if one thinks fearlessly, one cannot be politically orthodox. The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees, but the record that is being played at the moment." जॉर्ज ऑरवेल के ऐसे को मज़ीद सिंपल लैंग्वेज में जो हमारी उर्दू है उसमें समझते हैं हम कि द प्रिवेंशन ऑफ लिटरेचर जो ऐसे है जॉर्ज ऑरवेल का, इसमें जॉर्ज ऑरवेल बात करता है टोटलिटेरियन मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम्स के बारे में। ठीक है, अथॉरिटेरियन रिजीम्स क्या होती हैं? जो नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स के बारे में जॉर्ज ऑरवेल का कहना है कि उसमें इंटेलेक्चुअल फ्रीडम को जो है सप्रेस किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि ट्रूथ को मैनिपुलेट किया जाए। मैनिपुलेट करना मतलब कि ट्रूथ को सही से डिस्क्राइब ना करना, और सप्रेस करना डिसेंट को, मतलब ऑपोजिट जो थॉट होती है किसी भी इंडिविजुअल की ऑपोजिट, उससे इख्तलाफ जो है अथॉरिटेरियन रिजीम करती है। और ये उसी के ही सारे टोटलिटेरियन और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के बारे में जॉर्ज ऑरवेल ने अपने ऐसे में सब बयान किया है, जिसका नाम है द प्रिवेंशन ऑफ लिटरेचर। जॉर्ज ऑरवेल कहता है कि अब ये अथॉरिटेरियन जो रिजीम्स होती हैं ये कैसे कंट्रोल करती हैं। तो ये कहते हैं कि एक्शंस को तो कंट्रोल करती हैं लेकिन थॉट्स को भी कंट्रोल करती हैं।
क्योंकि वो समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है देयर ग्रेटेस्ट एनिमी है, उनका दुश्मन है। और लिटरेचर जो है वो है फॉर्म ऑफ फ्री एक्सप्रेशन, मतलब लिटरेचर में हम जो है अपनी थॉट्स को बयान करते हैं जो कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो होती हैं इसके ख़िलाफ़ होती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वो कहते हैं, जो वो अथॉरिटेरियन रिजीम कहती है वही हो, और वो ऑपोजिट थॉट्स को जो है रिजेक्ट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि अथॉरिटेरियन रिजीम के अगर ऑपोजिट थॉट होगी किसी की, लेट सपोज ऑपोजिट थॉट होगी किसी की, ये अथॉरिटेरियन रिजीम अपना सिस्टम चला रही है स्ट्रेट, ठीक है, और वो चाहते हैं कि इसी स्ट्रेट लाइन में उनका सिस्टम चलता रहे। लेकिन अगर जो ऑपोजिट व्यूज़ होंगे किसी के भी, और वो लिटरेचर को इस्तेमाल करके अपनी थॉट प्रोसेसिंग को डिफ़ाइन करेगा, तो ये ऑपोजिट वे में इनका सिस्टम चला जाएगा। तो इस वजह से ये थ्रेट करती है इस सिस्टम को। ऑरवेल कहता है कि राइटर्स को यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि वो इन अ फ्री सोसाइटी चैलेंज कर सकें अथॉरिटी को, क्वेश्चन कर सकें उनके नॉर्म्स को, और एक्सप्लोर कर सकें कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ को। अंडर टोटलिटेरियनिज्म राइटर्स आर आइदर साइलेंस्ड और फोर्स्ड टू प्रोड्यूस प्रोपेगेंडा। कहता है कि अथॉरिटेरियन रिजीम्स जो हैं राइटर्स को या तो खामोश करवा देती हैं या तो उनको मजबूर करती हैं कि वो प्रोड्यूस करें प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा कैसे करते हैं? लेट्स सपोज़ कि अथॉरिटेरियन रिजीम एक ही लाइन में अपने सिस्टम को चलाना चाह रही है, तो वो उसी को ही मैनिपुलेट करके, ट्रूथ को मैनिपुलेट करके अपनी जो भी उनकी पावर होगी उसको वो मेंटेन करेगी। लेकिन अगर जो राइटर बिल्कुल ट्रूथ लिखता है और ये सारा सिस्टम ऑपोजिट वे में जा रहा है, तो उसको फोर्स किया जाएगा प्रोपेगेंडा करने पे। अब प्रोपेगेंडा कैसे करेगा? वो इस जो ट्रूथ है उसको सिस्टम में इंक्लूड करके अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ें जो अथॉरिटेरियन रिजीम उसे कहेगी उसको इंक्लूड करके पावर को बरकरार रखेगा। ऑरवेल कहता है कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती हैं वो मैनिपुलेट करती हैं लैंग्वेज को भी, ताकि वो कंट्रोल कर सकें थॉट प्रोसेस को। जैसे कि ऑरवेल का एक और ऐसे है जिसमें उन्होंने बात की है करप्शन ऑफ लैंग्वेज की, पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में। ऑरवेल का मानना है कि प्रिंटिंग ब्रॉडकास्टिंग में पोटेंशियल है ताकि स्प्रेड किए जाए आइडियाज़ को, जैसे कि अभी के दौर में सोशल मीडिया जो है वो स्प्रेड कर रहा है आइडियाज़ को। पहले प्रिंटिंग होती थी, ब्रॉडकास्टिंग होती थी, तो वो स्प्रेड करते थे आइडियाज़ को। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी का यूज़ है। अब ये देखा गया है कि टेक्नोलॉजी को भी सप्रेस किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है इंफॉर्मेशन को अंडर अथॉरिटेरियन रिजीम्स। जैसा कि हमने बात की कि इंटेलेक्चुअल फ्रीडम जो है वो ज़रूरी है मीनिंगफुल लिटरेचर के लिए। लिटरेचर क्या था कि हम आइडियाज़ को अपने एक्सप्रेस करते हैं, और प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रूथ कह के, जो इसके ऑपोजिट हमने अभी पढ़ा है कि प्रोपेगेंडा होता है अंडर ऑथोरिटेरियन रिजीम्स। ऑरवेल कहता है कि विदाउट इंटेलेक्चुअल फ्रीडम सोसाइटी रिस्क डिसेंडिंग इनटू इग्नोरेंस एंड ऑपरेशन। सिंपल। जी, तो फिर इस ऐसे में यही था। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, और मज़ीद आप अपनी राय भी दे सकते हैं मुझे कि कैसे बेहतर करना चाहिए मेरी टीचिंग स्टाइल को। थैंक यू।